Everybody is good with little Hindi and English? Yeah? Okay. Okay. So all of you are, mostly all of them are student, Pranati? Yeah? Okay. वीडियोस ऑन कर लें तो अच्छा लगेगा मुझे भी इंटरैक्ट करने में. दिखेगा कि आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं. So my name is Swati Chaturvedi. Yeah. So मैं अभी तो सब लोग मुझे एज अ योगा टीचर जानते हैं, but I had done my engineering in computer science in 2019 or 2008, not 19. और उसके बाद मैं I was working in IT. तो 7 years I worked for Accenture and Bank of America, my last job. While working in my last company, I happened to, join this Art of Living workshop. And somehow I realized that what I'm doing is okay, but I think I can do better in yoga. And so I keep on exploring. I attended many workshops, I did some trainings, and gradually I found and I loved what, yoga brings. And slowly I shifted to yoga, teaching yoga as a asanas, meditation, and also understanding the lifestyle. So yoga is not just to asana, to do some back bends, to stand on the head, but it is more than asanas, more than uh, even meditation. तो मेडिटेशन इज ऑल्सो गुड, बट अगर आप जाकर आपकी क्या आदतें हैं, आप क्या कर रहे हैं दिन भर, उनसे लोगों को क्या प्रभाव पड़ता है, हाउ द पीपल अराउंड यू गेट इन्फ्लुएंस, नॉट जस्ट पीपल, द ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग अराउंड यू, हाउ यू एक्चुअली बिहेव. So everything comes in this yoga, not just asanas, meditation, and breathing. Yeah. So let us explore how food is linked with it and how lifestyle is affected by our habits, especially eating habits. Yes. So I will be sharing you a PPT. I uh, I will make sure it won't be that boring. I have to share it and then I will maximize it. Okay. All right. All of you are able to see it? देख पा रहे हैं प्रणति? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what is One World Yoga? So I came up with, this goal of mine that why don't we make this whole world realize and understand the ancient knowledge we already had. I know many of us are already, doing this, but I wanted to do it on by my own, to share the authentic knowledge which actually our tradition has provided us. तो सारा नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है, बट उसको कैसे अप्लाई करना है और कैसे उसे शेयर करके हाउ वी दैट कैन हेल्प इन मेकिंग एवरीबॉडी डिसीज फ्री, स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री. तो ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं. डिसीज फ्री होना, डिसीज वेदर इट इज अ मेंटल और इट इज अ फिजिकल डिसीज, स्ट्रेस फ्री होना. Stress will keep on coming up, but how to stay free from it, and violence free. So this is also very important aspect. तो violence हम ना ही mentally हो ना ही physically हो. Yeah. So all these things helps go together. सब साथ में चलता है with this ancient knowledge. Yeah, about me, I have already told I have done many certification. अभी मेरी masters भी चल रहा है yoga में. I'm in final semester. I'm doing it from Swami Vivekanand Anusandhan Vidyalaya. This is in Bangalore.
तो वहाँ से आई एम डूइंग दिस डिस्टेंस प्रोग्राम. Or other than that, I have done so many certification, around 5 to 6 certification in variety in all the top, yoga institute of our country. And other than that, the services that One World Yoga offer. So it offers you diet sessions, it offers you detox, it offers you, lifestyle, complete lifestyle correction. तो डाइट में डाइट जो तो हम आगे बात करेंगे ही, बट इसके अलावा जो है डिटॉक्स भी हम आई यूजुअली टेक क्लासेस ऑन डिटॉक्स ओवर वीकेंड्स. तो इसमें सारी चीजें जो है प्रैक्टिकली आप घर में कैसे कर सकते हो इजीली, और किस कंडीशन में क्या चीज हमको करने से बेनिफिट मिलेगा. तो दैट कम्स अंडर दिस षट कर्मा. So whether it is Jalaneti, Sutraneti, it is Lagu Shank Prakshalan, it is Shank Prakshalan, it is Basti, or other than that some Ayurvedic detox, that is oil pulling, naturopathy ke detox, so which are which we can perform at our home at our ease. तो ये डिटॉक्स से भी all these lead to being stress free, disease free, violence free. इन तीनों के लिए ये सारे चीजें जो है हमें हेल्प करते हैं मेंटेन करने में. Diet plan, this will come at the end. ये diet क्या है? We'll talk about it in the whole session. And all this will lead to lifestyle. The lifestyle it is not just only your food habit or you are doing yoga or not, but also how nature around you is getting affected. आपकी habit से, आपकी decision से, आपके action से कैसे आपका चारों तरफ का environment उससे प्रभावित होता है. तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करते हैं, कैसे हम अपने घर में अपने लिमिटेशंस में उन चीजों को फॉलो कर पाएं. हाँ, I also take being an art of living teacher, I also take online breath and meditation workshop, and the next one which is going to be is from 1st July, 1st to 4th. So this is just an information in case if you or anyone is looking for, can join in. आप सब तो I think already सुदर्शन क्रिया सीख चुके होंगे. So now comes the food. So what is food? How the food is being treated? अभी जो हम खाना है, जिस तरीके से उसको खाते हैं, जो हमारे उसको इम्पोर्टेंस जिस तरीके की मिलती है कि साथ में मोबाइल चल रहा है, साथ में टीवी देख रहे हैं, या कुछ काम साथ में हम काम करते जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं. कुछ लोग तो खड़े खड़े ही while standing they are eating, खड़े खड़े ही पानी पी रहे होते हैं. When they are eating, when they are sleeping, कुछ nothing is properly done. But what it is in our Vedas, what it is in our tradition, कि ब्रह्मा की उपाधि दी गई है अन्न को. Food is considered as Brahma. So you all must be already knowing कि Brahma is such an important aspect. How must have heard about Panch Mahavakyas. तो पंच महावाक्यास जो होते हैं, out of it one of them is अहम ब्रह्मास्मि. तो ब्रह्मा की उपाधि अन्न को भी दी गई है. डू यू अंडरस्टैंड कितना इम्पोर्टेंस है इस वर्ड का. एंड अन्नम ब्रह्मास्मि, अन्नम ब्रह्मेति विजनमा. तो these quotations which I just made, तो ये हमारे वेदों में है, ये हमारे उपनिषद्स में दिया गया है. And how the food we take care, how we eat the food in these days. How much importance does we give to food? सभी लोग वीडियो बंद करते जा रहे हैं. Just bear with me. Keep your videos on, no? वीडियोस को ऑन रखिए. हाँ, तो ब्रह्मा की उपाधि दी गई है खाने को. तो ये कहाँ से? This is very nicely explained in तैत्तरीय उपनिषद. There is very nice Upanishad. Maybe you all must be knowing. कितने लोगों ने पंचकोशा मेडिटेशन कर रखा है? How many of you have done? कितने लोगों ने? Anyone? पंचकोशा तो मैक्सिमम लोगों ने करा ही होगा. So all about all these koshas are mentioned in our Taittiriya Upanishad. तो Taittiriya Upanishad में it is very nicely explained कि how the food is what from which we are born, and then our body lives throughout with the food, and at the end also we will return back to food. खाने से ही हमारा जन्म हुआ है, खाने से ही हमारा संचालन होता है, और अंत में जाके भी हम खाना ही बन जाने वाले हैं. So this is how the food plays role everywhere. It is the eldest element.
Yeah, it can be used as a medicine. It is the only medicine. Now, coming to the next is, now tell me, what do you think? Does the body runs on food? क्या जो हमारा बॉडी है फूड से रन ही करता है केवल? Does our body runs only through food? या इट कैन कंफ्यूज यू. इससे ये भी आपको लग सकता है कि हाँ और भी चीजों से तो हमारा शरीर रन कर सकता है. बट माई क्वेश्चन इज, डज द फूड दैट गोज इन अवर माउथ इज ओनली रनिंग अस? अच्छा, इसको और हम ऐसे समझेंगे कि रिमेंबर व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न और व्हेन यू वर बॉर्न, तो हम कैसे पैदा हुए थे? 3-4 किलो का वेट लेके वी वर जस्ट बॉर्न. या एंड राइट नाउ लुक एट योरसेल्फ. अभी कितना वेट हो गया है? 50, 60, 70, जितना भी वेट हो गया है. So by seeing to this, it is clear that we not only run our body with food, but our body also become food. So this is very important point कि हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमारा शरीर केवल चल नहीं रहा है, पर वो खाना हमारे शरीर को बना भी रहा है. या so medical science mostly they give analogy of comparing a car with a human body. जैसे गाड़ी चलती है पेट्रोल से, वैसे शरीर खाने से चलता है, बट खाने से बनता भी है. या so this analogy which is usually done, that doesn't work. या तो क्यों अभी ये वर्क नहीं करता है? तो क्यों? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? व्हाट इज हिडन इन दैट? सो यू नो देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फूड. फूड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो नाउ वी विल फ्रॉम तैत्तिरीय उपनिषद विल मूव टू छांदोग्य उपनिषद. छांदोग्य उपनिषद हैज ओके हाँ okay, there is one more question for you. Does what goes into our mouth is only food? क्या केवल हमारे शरीर में जो जा रहा होता है? We'll come to the part before this question is for you. कि जो हमारे शरीर में जो अपने माउथ से जा रहा होता है, क्या वही खाना है केवल, या और भी कुछ खाना हो सकता है? You can even type in the chat or you can just mentally think about it. कि क्या जो हम खाते हैं मुंह से, क्या वही केवल खाना है? So everything, you know, everything from all the 5 senses, what we are seeing, हम जो देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, जो बोल रहे होते हैं, जो टच हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है, everything, every experience by experience, that is all as a food entering in us and becoming us. Whether it is a thought, whether it is, you know, food from the mouth, whether it is a smell, whether it is a sound, whether it is, you know, the work what we are doing, जो भी हम चल रहा है. तो from the day when we were born, all these 5 senses are acquiring things and all that is food becoming us. तो वही जाके अभी इसीलिए why everybody is having the same food, they may not be same because of all these other senses also receiving things as a food. तो बहुत इसीलिए बहुत important है कि जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो क्या चल रहा है हमारे माइंड में, क्या हम सुन रहे हैं. Yeah, all these things are very important. Are we looking to our food or are we looking somewhere else on the TV? What we are listening? Are we listening this COVID news or we are, you know, into the food? So very important these small things plays. So food is not only what enters from our mouth, but what time you're spending in. Are you spending time so much on your phone, surfing all the time, watching videos back to back, seasons back to back? So all that is also becoming your food. You also you are becoming from that. Yeah. Now, which I was talking earlier about the parts of the food. तो parts of the food क्या क्या होते हैं? So as per छांदोग्य उपनिषद there are 3 parts of the food. पहला पार्ट तो होता है ग्रॉस पार्ट, जो हमारा बॉडी से निकल जाता है, फीसिस, या द वेस्ट मटेरियल दैट गेट्स आउट फ्रॉम द बॉडी. देन सेकेंड पार्ट जो होता है दैट इज द फ्लैश, जो हमारा बॉडी बन रहा है, ममसा. तो जो शरीर हमारा बनता है फ्लैश, दैट इज द सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द माइंड सेट. तो हमारा माइंड सेट भी जो है वो खाने से बनता है. आपने सुना होगा, मैक्सिमम एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, यू नो, व्हाट यू ईट, दैट हाउ यू थिंक,
what you eat that way you think, या फिर उसको ऐसे बोलेंगे जैसा अन्न वैसा मन, आप जो खाओगे वैसे ही आपका मन हो जाएगा, वैसे ही विचार आएंगे आपको, या सो दैट इज वेरी वेरी ट्रू। हमारा माइंड भी वैसे ही हो जाता है जिस तरीके का हम खाना खा रहे होते हैं। द फूड दैट इज एंटरिंग इन अवर माइंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इफ यू विल लुक एट ऑल द the famous people in the world, their eating habits are very very specific, they give respect to their food। तो ये आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की डाइट के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, यू विल फाइंड आउट दैट फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, या so these were the parts of the food। और बिफोर दैट, या these what I mentioned कि ये 5 senses से जो हम लेते हैं ये हमारा भोजन है, बट साथ ही साथ ये भोजन हमारे सारे कोशों पे अफेक्ट करता है, नॉट जस्ट not just our this physical body, but also the different koshas that you already know: annamay kosh, pranamay kosh, manomay kosh, vignanmay kosh, anandamay kosh. All the koshas are getting built, all the bodies are getting built with the food that is entering from all these senses। Then comes very nice, very important, चंदोग उपनिषद में सारा फूड का साइंस है, तो अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो उसमें आप देख सकते हैं। आई हैव टेकन द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट एवरीवन शुड फॉलो, या तो दिस आई ऑलरेडी सेड, जैसा अन्न वैसा मन, एज इज द फूड सो इज द थॉट, यू आर व्हाट यू ईट। तो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज सेड इन चंदोग उपनिषद इज कि जो खाना हमारे घर में आ रहा होता है, मान लीजिए आपके घर में जो आपके फादर वर्किंग है, या फिर आपके घर में आपके ब्रदर वर्किंग है, मदर वर्किंग है, जो भी काम कर रहे हैं, तो जो पैसों से आपका घर में खाना आ रहा है, वो पैसे जो हैं वो हार्ड अर्न्ड मनी होना चाहिए। इट शुड बी हार्ड अर्न्ड मनी। अगर वो पैसे हार्ड अर्न्ड नहीं है, मे बी सम थिंग इज इन्वॉल्व्ड इन इट विच इज नॉट गुड, तो वो केवल उस इंसान के ऊपर नहीं अफेक्ट करता है, दैट ऑल्सो अफेक्ट द कंप्लीट फैमिली who are consuming the food which is earned with the money which is not hard earned, या जो ईमानदारी से पैसे कमाए हुए वाला खाना होता है, और इसका उल्टा उसका डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है हमारे मन पे, एंड स्लोली इट कैन अपीयर इन एनी ऑफ द कोशास। सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी अपने खाने के लिए, क्योंकि कर क्या रहे होते हैं एक्चुअली में, खाने के लिए ही अल्टीमेटली द गोल इज टू हैव गुड फूड, कि हम आराम से बैठ के खा पाएं, इसीलिए हम काम कर रहे होते हैं। बट अगर उसमें भी आप चीटिंग करेंगे या कुछ आप गलत कर रहे हैं, तो वो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाएगा। भले यू आर थिंकिंग कि या आई एम अर्निंग मोर, मेरे को बहुत पैसे मिल रहे हैं, बट दैट इज नॉट ब्रिंगिंग एनी गुड टू योर फैमिली, या इट मे नॉट रिजल्ट in a quick, it can be in any way, it can come back to you, yeah। So this is very important thing। The second point is the association। एसोसिएशन ऐसे, अब खाना आ गया है, आप खाना घर में खा रहे हैं, तो किस कंपनी में बैठ के आप खाना खा रहे हैं? आर यू हैविंग इट विद people with quite minded people, or you are having it randomly, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट इज नॉट गुड, थिएटर्स में खा रहे हैं जाके। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके साथ आप बैठ के खा रहे हैं। आप फैमिली में बैठ के आराम से खा रहे हैं थोड़ी बातें करते हुए, या फिर आपका कुछ और ही एसोसिएशन है। सो एसोसिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन सेकेंडली इज मेंटालिटी। अब जो भी घर में खाना बना रहा होता है, वेदर योर मॉम इज कुकिंग और यू योरसेल्फ कुकिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब खाना बना रहे होते हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा होता है। तो यूजुअली चल रहा होता है कुछ जल्दबाजी में कर रहे हैं, या कुछ माइंड में थॉट्स चल रहे हैं कि आगे क्या करना है, या अरे बच्चे को उठाना है, या फिर ना हस्बैंड के लिए कुछ बनाना है, या फिर कुछ मुझे अभी काम करने जाना है। तो वो सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, या तो हरी के, है ना, यू आर इन हरी और यू आर इन विद फियर। सो दोज काइंड ऑफ फीलिंग्स अगेन एंटरिंग इनटू योर फूड। तो वो मेंटेलिटी आपकी कैसी है खाना बनाते समय, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपकी मॉम खाना बना रही है तो आप मेक श्योर करें कि उनको हैप्पी होना चाहिए व्हेन शी इज कुकिंग द फूड और व्हेन यू आर कुकिंग द फूड। तो ये कैसे आएगा? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस, बट हाउ कैन यू स्टार्ट विद दिस? यू कैन स्टार्ट विद प्लेइंग सम नाइस म्यूजिक। आपको जो म्यूजिक पसंद है, पॉजिटिविटी जिससे आ रही है, थोड़ा आप हैप्पी फील कर रहे हो, वो म्यूजिक लगा सकते हैं। यू कैन प्ले भजन, यू कैन प्ले चैंटिंग्स, यू कैन सिंग बाय योरसेल्फ।
तो उस समय आप थॉट्स नहीं आएंगे, यू विल बी फोकस्ड ऑन द म्यूजिक. So this is how you can take care of what goes in your mind while you're cooking, while you're chopping, while you're washing, whatever you do in your kitchen. You have to you can take care in this way. Then the next thing is the chanting. So this also comes from our Chandogya Upanishad कि हम खाने को ग्रहण करने के पहले when you are going to start the food, you take some moment. कुछ मोमेंट लेके यू मेक अ प्रेयर, वेदर इट इज अन्नदाता सुखी भवा और एनी भोजन मंत्र. तो while chanting that, what happens again, you bring your awareness to the food, और आपका जो ध्यान है वो खाने के ऊपर आएगा. कुछ भी काम करके आप बीच में खाने आए हैं तो वो काम के थॉट्स चल रहे होते हैं, या कुछ और आप करने जाने वाले हैं वो मन में चल रहा होता है. देन अगेन यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन योर फूड. तो जितना आपका अटेंशन फूड के ऊपर रहेगा उतना ही आप ध्यान रख पाएंगे ना आपके माइंड में क्या चल रहा है. So this is very important. And again, while chanting, what happens, you understand that how the food comes to our plate. कितना efforts लगता है एक बीज बोने में, किसान कितनी मेहनत करता है, वो जो है सब्जियां, जो अनाज आपके घर में आता है उसको प्रोसेस आने तक, घर के आपके प्लेट में आने तक कितना समय लगा है, कितनी मेहनत लगी है. So just give some time, be grateful, relax, smile, breathe, and then you begin your food. So this is very important. So chanting is very important. Offering, which I should also cover up. तो offering भी बहुत important है कि हम प्रसाद के रूप में खाने को खाएं. अब ऐसा नहीं है कि आप खाने में निकालिए, मंदिर जाइए, प्रसाद लगाइए, इतना सब करने की जरूरत नहीं है. आप बस मेंटली यू थिंक कि यू जिसको भी आप प्रे करते हैं, मे बी इट इज गुरुदेव, मे बी एनी इष्ट देव, मे बी जस्ट प्रकृति, नेचर, आप उसको थोड़ा सा जो है ऑफर कर दीजिए अपना खाना. यू टेल you offer the food and then you have it. तो उसी में हमारा जो है माइंडसेट चेंज हो जाता है, दैट ग्रेटफुलनेस कम. और ग्रेटफुलनेस से जब खाना खाएंगे तो आप कुछ भी खाइए, उसका मैजिक होगा, दैट विल वर्क. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने खाने के साथ रिलेशनशिप डेवलप करें. टीवी चला के खाना, फोन के साथ खाना, खड़े खड़े खाना. So those kind of habits we need to be very watchful on those habits. Yeah. So this mindset is very important. And yagna, yeah, so this is everything is related to yagna somehow, like our breathing is also yagna. तो यज्ञ ही हो रहा होता है जब हम खाना खा रहे हैं, एक तरीके से खाना हमारे पेट में जा रहा है, और इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस कि यज्ञ कर रहे हैं. अभी आप पूजा पाठ जब जहाँ होता है, रुद्र पूजा होती है, कितने अच्छे से बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते हैं, कितना अटेंशन दे रहे होते हैं. यस, फिर खाने को क्यों नहीं करते हैं? तो खाना भी एक यज्ञ ही है. सो दैट कीपिंग दैट माइंड इन योर माइंड. ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ऐसे ही डायरेक्टली हम बोलेंगे किसी को कि ये अच्छे से करो, बट व्हेन यू विल बी नोइंग दीज रीजंस, यू विल स्लोली यू मे बी रिमाइंडिंग योर सेल्फ, इट मे बी कमिंग एज अ थॉट इन योर माइंड कि हाँ ऐसा होता है तो लेट्स ट्राई. तो धीरे धीरे करके यू विल बी एबल टू बिल्ड एटलीस्ट फ्यू ऑफ द क्वालिटीज, एंड दैट इज मोर देन इनफ. Okay, so now from Chandogya Upanishad we come to Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita chapter 7.6 mentioned about the सात्विक diet. कि सात्विक आहार क्या होता है, या क्या होता है सात्विक आहार. तो कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा, जिसमें या तो बहुत नमकीन है, बहुत मीठी है, बहुत तीखी है, बहुत ऑयली है, या बासी है ना, या सड़ी हुई है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सात्विक नहीं है. तो सात्विक क्या है? जो फ्रेश है, जो लाइव है, या जिसमें आपको कंटेंटमेंट फील हो, टेस्ट आपको अच्छा लगे, तो वो सारी चीजें होती हैं सात्विक डाइट में. या तो ये हमको कोशिश करना है. अभी के जमाने में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हम सात्विक आहार, प्योर सात्विक ले पाए, कि भाई हमारे ही गार्डन में सब्जियां लग रही हैं, बढ़िया सब्जियां लेके आ रहे हैं, उसको फ्रेश बना रहे हैं, तो ये हम कर पाए थोड़ा डिफिकल्ट है. बट यस, वी कैन हैव दिस थॉट इन अवर माइंड. ऐसा हम मन में तो सोच के रख सकते कि हाँ कहीं आगे जाके विल हैव सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट फॉर अस, कि हम पूरा कंप्लीट सात्विक खाना हमको मिल पाए. या बट अभी लॉकडाउन में जो मिल रहा है, व्हाट इज अवेलेबल टू यू इज गुड इनफ. या बट जस्ट यही है कि प्रिपरेशन में हमें ध्यान रखना है, ज्यादा नमक,
ज्यादा मिर्च, ज्यादा ऑयली, ये जो भी ज्यादा हो रहा है, या बिल्कुल फीका खाना, बिल्कुल बेस्वाद खाना, बासी खाना, ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। या वीडियोस फिर से सबने बंद कर लिए हैं। So are you able to follow? सुन पा रहे हैं? Anybody unmute and share if you are able to relate what I'm trying to explain. Yeah. Okay. Okay. All right. So we'll move forward. हाँ. So this is a very nice quote that I found. Every man is guilty of the good he did not do. तो ये बहुत जस्ट दिस इज ओनली फॉर थिंकिंग, आप सोचिए इसको, इसमें कुछ मैं बोलूंगी नहीं। ओके, सो नाउ आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इम्यूनिटी, हाउ वी कैन रिलेट इम्यूनिटी विद द फूड। तो हमारे वेदों में बहुत अच्छे पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिनसे हम टेस्ट खुद ही कर सकते हैं घर में, बाहर जाके हॉस्पिटल में हमको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड, बट ये बेसिक टेस्ट हैं जो आपको आपकी हेल्थ कैसी है वो बता सकते हैं। या तो फर्स्ट पॉइंट इज, इसका सबसे मेन स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट कि अगर आप रोज सुबह उठते हैं और आपका एक बार में पेट साफ हो जा रहा है, आपको वेट नहीं करना हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं, आपको काढ़ा नहीं पीना पड़ रहा है, ये सब घोल नहीं ढूंढना पड़ रहा है, गर्म पानी, चाय, कॉफी, ये सब की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप बस उठे, आपका पेट एक बार में साफ हो गया, मल्टीपल टाइम्स, यू डोंट हैव टू गो टू वॉशरूम टू यूज इट फॉर मल्टीपल टाइम्स, और या फिर आपको मल्टीपल डेज हो जा रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू इवैक्यूएट, आपका जो कोलोन है वो क्लीन ही नहीं हो रहा है। तो अगर ये सिचुएशन है, देन दैट इज द प्रॉब्लम कि हमारा ये, हमको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना, इम्यूनिटी हमारे इशू हो रहा है। देन द नेक्स्ट पॉइंट फॉर दिस इज कि अगर आप कि दिन भर में एनर्जी लेवल्स कैसे रहते हैं, हाउ इज योर एनर्जी लेवल, कि आप दिन भर एक्टिव फील कर रहे होते हैं या फिर आपको बीच बीच में लगता है कि नहीं, अब मुझे थक गई हूँ, मुझे सोना है, रिलैक्स करना है। तो आपका एनर्जी लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी डिफाइन करने में। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मेंशन्ड इज कि आप दिन भर में जो आपको भूख लगती है कि नहीं। व्हाट हैपेंस इज, अभी फूड इतना इजीली अवेलेबल है, because of the easy access of all the junk food and everything, we keep on munching, पूरे टाइम खा रहे होते हैं, टेबल पे भी खाना होता है, किचन में भी खाना होता है, हर जगह you will find food in your house। और जब आपका मन हो, अभी लॉकडाउन में being at home mostly people are just munching on whatever they get onto, तो ये करते होते हैं, तो फिर हमारा पेट का जो असली भूख होता है, हंगर पैंग्स जो होते हैं, वो फील ही नहीं कर पाते। And if you are not able to feel them and you are just eating on eating on eating, so that is also one thing that you have to take care। तो अभी हमें हंगर पैंग्स का फील आना चाहिए, भूख लगनी चाहिए। अगर तेज भूख लग रही है, that means that point is checked। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि हम जो है रात में जब सोने के लिए जाते हैं तो हमारी नींद एक बार में लग रही है क्या, या हमें करवट बदलना पड़ रहा है, या हमको नेट पे सर्च करना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं कि मुझे नींद आ जाए। सो इफ यू आर इवन इफ यू आर गोइंग टू स्लीप, क्या आपकी 3-4 बजे फिर से नींद खुल जा रही है, आप पूरी प्रॉपर नींद नहीं कर पा रहे हो, कुछ घंटों में नींद खुल जाती है क्या। सो दिस स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइन टू चेक इफ योर इम्यूनिटी इज गुड और नॉट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, हाउ इज योर स्किन, आपकी स्किन कैसी है, आपकी स्किन में ग्लो आ रहा है, या आपकी स्किन में कुछ पिंपल्स है, या डलनेस है, या रैशेस हो रहे हैं, स्पॉट्स आ रहे हैं। तो ये सारा भी, हमारी स्किन भी जो मिरर होती है हमारी हेल्थ की। तो इफ द स्किन इज नॉट गुड, then again that is the thing that we need to take care, that is the signal our body is telling us कि अभी हेल्थ का ध्यान देना है, इम्यूनिटी का ध्यान देना है। then the next point is कि हम जो भी whatever we are या दिन भर में हम अपने सारे काम जो कर रहे हैं उनमें कहीं पे क्या हमारी बॉडी में पेन आ रहा होता है, परसिस्टेंट पेन जो आपको हमेशा रह रहा है, आपके हेड में हो सकता है, पैर में हो सकता है, पेन एनीवेयर, या आपको दिन भर सही रहते हैं, कहीं पे कोई पेन नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन कि हाउ इज योर इम्यूनिटी। या एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये सारी चीजें अगर एकदम सही चल रही हैं, मगर
आप हैप्पी नहीं है, आपके थॉट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको ना कुछ आप या तो डल हो रहे हैं या तो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, दोनों ही चीज, या तो आप सबसे दूर जा रहे हैं या कुछ ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि अगर आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं, भले ही सारी चीजें चेक हो गई हैं मगर ये चेक नहीं है, तो दैट मीन्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर इम्यूनिटी, या एंड इसके साथ इसके अलावा आई विल जस्ट चेक इफ एनीथिंग एल्स आई मिस्ड। या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वेट कैसा है? इज द वेट इज हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक चेक होता है। यू कैन एनालाइज, दैट इज ऑल्सो अ चेक, अ टेस्ट दैट यू कैन डू टू नो दैट हाउ योर हेल्थ इज। BMI रेंज जो है अभी एज पर BMI रेंज हमारे पास है, उससे आप चेक कर सकते हैं एटलीस्ट एवरी फ्यू मंथ्स यू चेक कि हमारा जो BMI है सही चल रहा है कि नहीं। बहुत ज़्यादा दुबले हैं तो भी इशू है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है दैट इज ऑल्सो एन इशू, या ओके। तो इम्यूनिटी के लिए ये सब हमने जान लिया। अभी जो खाना हम खाएंगे, जो हमारी लाइफस्टाइल होगी, जो एक्शंस हम लेंगे, जो भी चीजें हम करेंगे वो हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करेंगे। तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसे होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली ये सारे पॉइंट्स को टेक केयर करके हम आगे बढ़ सके टू अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, या। So whether you think you can or you think you can't, you are right. So Henry Ford ने, the very great industrialist, you all must be knowing. तो ये सब हमारे ऊपर ही है। अगर हमने सोचा है कि हमें करना है, कुछ बदलना है, आगे बढ़ना है, तो हम बढ़ेंगे। अगर हमने सोचा है कि भाई हमसे नहीं हो सकता, मेरे लिए नहीं है, मैं अपनी आदतें नहीं बदल सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, तो then that is true for you. So it is your choice. Yeah. तो अभी थोड़ा सा हम जंक फूड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जंक फूड, जो भी फूड होता है, देयर इज समबडी मैसेजिंग इन द चैट, व्हाट दिस मैसेजेस, ओके। तो मार्केटिंग जो हो रही होती है जंक फूड्स की, तो वो दिखता तो कुछ और है, बड़ी सुंदर सी लड़की होगी, बड़े फिट गर्ल और बॉय, और अ नाइस कपल विल बी देयर हु आर ईटिंग जंक फूड, एंजॉयिंग इन द एडवर्टीजमेंट, बट इन रियलिटी व्हाट इज द फैक्ट कि ये हालत हो जा रही होती है, और वो बस एडवर्टीजमेंट होर्डिंग में ही हमारे लिए एक इमेज में ही रह जाता है कि हाँ ऐसे भी हो सकते हैं, और ये सब खाते रहेंगे तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं पाएंगे। सो उनको पैसे मिल रहे होते हैं, इसीलिए वो ऐड कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, आपको वो खरीदने की, घर में लाके खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक फूड इन वॉट एवर कमिंग फ्रॉम दी फूड इंडस्ट्री। तो फूड इंडस्ट्री से जो भी चीजें आ रही है हमारे घर में, जो भी पैकेज चीजें आ रही है, जो भी आप मंच कर रहे होते हैं, नमकीन, आपकी फेवरेट हल्दीराम की भुजिया, ये सारी चीजें, चाहे बिस्किट्स हैं, चाहे आपका ओरियो बिस्किट, जो भी चॉकलेट्स आप खा रहे होते हैं, जो भी चीजें आप ले रहे हैं पैकेट से आ रहे हैं, वो टेस्टी बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की पॉकेट भर रही है, पैसे जा रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सोचें कि हमको दूसरों को पैसे भरवाने हैं या अपनी हेल्थ को बचाना है, because they all are poison, they are slow poison, they are going to show up maybe fast, maybe slow. तो आपको ये समझना है कि क्या आप उनके लिए खाना चाहते हैं कि उनके घर वाले, उनके परिवार वाले मजे से रहें, सारी ऐशो आराम से रहें, अपने प्राइवेट प्लेन्स में घूमें, या फिर आप अपनी हेल्थ को बचाना चाहते हैं, आपको हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े। यहाँ सो वेरी इंपॉर्टेंट कि रियलिटी और मार्केटिंग में क्या अंतर है, या why it is not moving? ओके हाँ, तो ये इसमें से बहुत सारे आपके फेवरेट चीजें होंगी, दिख रही होंगी, जो आप जिनके बिना आपका एक भी दिन ना गुजरता हो शायद। या सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनसे थोड़ा परहेज करें, बिकॉज इसमें खाने जैसा कुछ है ही नहीं। इफ यू विल गो थ्रू देयर इंग्रेडिएंट्स, या सात्विक आहार की बात जो हमने की थी, ना तो ये फ्रेश है, ना तो ये आपको इसमें बहुत नमक होती है, बहुत, या तो मिर्ची होती है, चीनी तो हर चीज में होती है, तो शक्कर तो सभी में डाली जाती है, और मैदा सब में होता है, रिफाइंड ऑयल मिनरल ऑयल तक
जो है अभी डंप किया जा रहा है सारे रिफाइंड ऑयल्स में, तो आप कुछ भी इसमें से ले लीजिए, नथिंग इज वर्थ। या ये सारे चॉकलेट, सारे कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बस जिन जो बना रहे हैं उनके पॉकेट्स भर रहे हैं, आपका कुछ नहीं भर रहा है, आपका मेडिकल बिल और आएगा आगे जाके इफ यू आर हैविंग ऑल दीज। तो नाउ चॉइस इज योर्स, आपको हैबिट आपके हाथ में है। या सो इट इज ऑल ऑन यू इफ यू वांट टू चूज व्हाट यू वांट टू चूज। एप्पल चाहिए है कि डोनट चाहिए? You want a healthy lifestyle or you want to switch to what you are? Yeah, maybe many of you are already following this. Yeah, so don't take it if you are already in the path. Yeah, तो ये जो है this what we tell कि हम वन वर्ल्ड योगा में जो हमारे members होते हैं उनको हम ये खाने को बोलते हैं, and this is the most beautiful food and this is actually the food जो हमें nature से मिला है, हमें प्रकृति से मिला है as it is विदाउट एनी प्रोसेस। जब तो माइक्रो प्रोसेसिंग की जा रही होती है, जो चीज जो पहले थी उसका वो कुछ भी एसेंस बचता ही नहीं है, प्राण शक्ति तो भूल ही जाइए, उसका जो भी एक भी न्यूट्रिशन नहीं बच पाता है। द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग दैट दिस फूड इंडस्ट्री इज डूइंग। या तो ये अभी जो 100 सालों में हमारे खाने को लेके बिजनेस का जो आया है उसके कारण सबकी हेल्थ डिग्रेड होती जा रही है। You will see that in these 100 years, last 100 years, because of this food industry, the health has gone very bad. The cases of all kind of diseases, whether it is diabetes, thyroid, hormonal disorders, cancer, and any heart diseases, obesity, ये सारी चीजें 100 years में ही बढ़ी हैं because food industry is just marketing the products which you should not take. कभी किसी एप्पल का ऐड देखा है आपने? कभी किसी तरबूज का ऐड देखा है आपने? नो, दे पुट दोज ऑन पिक्चर्स बट उसके अंदर वो होता ही नहीं है, चाहे कितना भी रियल लिखा हो उसमें बड़ा बड़ा, बट नथिंग इज रियल इन दैट। Yeah, so this is the food that we should actually have, which is given to us by the nature. तो ये अगर हम खाएंगे तो ये भी उतना ही आपको कंटेंटमेंट फील कराता है। एक्चुअली में इट विल नॉट मेक यू टू क्रेव। या ये खाना जो आप खाएंगे, जो नेचर ने हमें दिया है, वो खाना अगर हम लेते हैं तो हमें क्रेविंग्स नहीं डेवलप होती हैं सात्विक खाना खाने से। बट वॉट एवर फूड that comes from packet and you have it, you become addicted to it. Sugar is very addictive, and any grain which is not full grain, not whole grain, is addictive. चाहे मैदा हो, चाहे white rice हो, चाहे refined oil हो, they are not wholesome, so they make you crave for more. That is natural. Yeah, so this is what in sattvic diet we offer. तो ये जो डाइट होती है इसमें आपको सारी चीजें साइंटिफिकली बताई जाती हैं और साथ में ट्रेडिशन के हिसाब से आपको बताया जाता है कि जो हमारे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, हमारे वेदों उपनिषदों के थ्रू जो हमें नॉलेज आई है, तो उसको कैसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये चीजें जो आप नहीं खा सकते हैं उसको आप घर में अपने तरीके से, हेल्दी तरीके से, क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। What they are producing is the least quality maintained, and only the taste, for the taste, for the texture, for the color, for the smell, they will add lots of chemicals for that to stay, to look like that, and to stay in the shelf for many days. But what actual food is way different from what is given in the packets. तो अभी आप जाते हैं, अभी कभी आप फ्रूट खाते हैं, तो फ्रूट खाने का जो एक अलग contentment फील होता है when you have a very nice sweet mango given to you, and आप उसकी जगह रियल जूस पीजिए। आपको खुद पता है कि मैंगो जो टेस्ट करता है और जूस जो टेस्ट करता है उसमें क्या डिफरेंस है। सो इन द सेम वे हर चीज को आप अपने घर पे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खाने को ही नहीं मिल पाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या खाऊंगा मैं, तो क्या खाऊंगी मैं, तो ये नहीं है हमारे पास। इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है। ओनली थिंग इज यू हैव टू कट ऑफ फ्रॉम व्हाट पीपल वांट टू मेक यू बाय थिंग्स फॉर देयर प्रॉफिट्स। या तो आपको एडवर्टाइजमेंट्स को अवॉइड करना है और हेल्दी लाइफ को अपने लाइफ में लेके आना, हेल्दी डाइट को। व्हाट इज एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग मेड टू ईट। कभी आपने किसी एनिमल्स को नहीं देखा होगा पैकेज्ड आइटम्स खाते हुए, या एनिमल्स, बर्ड्स, जो भी नेचर से मिलता है वही खाते हैं। तो यही नेचर से जो हमें मिली हुई चीजें हैं उनको कैसे खाना है, क्या सही टाइम होता है,
कितना खाना चाहिए आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपकी अगर कोई ऑनगोइंग डिसीज है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, तो उनको टेक केयर करते हुए, तो जो खाना ही है वो ही हमारी मेडिसिन बन जाता है, हमारी लाइफस्टाइल ही हमारी मेडिसिन बन जाती है। तो आगे जाके ना तो हमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं और हमारी बॉडी बहुत जल्दी कोई भी चीज से बाहर निकल पाती है। अगर आपको कोविड भी होगा या कोई भी आगे जाके H1N1 एनी वायरस कम्स, यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट ग्रेसफुली। आपको कोई परेशानी नहीं होगी व्हेन यू आर इन दिस टाइम। सो अभी लाइफस्टाइल हमारी जो है हर चीज से अफेक्ट करती है। इट इज नॉट जस्ट व्हाट वी आर ईटिंग हेल्दी, केवल हमारा खाना ही अच्छा हो, बट ऑल्सो अवर एक्शंस। डेली हम क्या कर रहे होते हैं अपने घर में। हम सोच रहे होते हैं कि हम सफाई करने के लिए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, बट हो क्या रहा होता है, वो सफाई नहीं हो रही होती, बल्कि और जो टॉक्सिन्स हैं वो लग रहे होते हैं सब जगह, और उनको हम इनहेल करके और जो बची कुची कसर है वो टॉक्सिन्स भी हम ऐड कर रहे होते हैं। So everywhere we are surrounded with these toxins unknowingly. Unknowingly we are thinking कि okay, these products are going to clean our clothes, these products are going to clean our house, साफ हो जाएगा, खुशबू आएगी, अच्छा लगेगा, but they are actually spoiling our house, spoiling our health, kids health, pets health, and overall हमारा environment जो है वो ही affect कर जाता है। या तो यू ऑलरेडी नो कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है, कितना ज्यादा नेचर जो है सफर कर रहा है, एंड देयर इज नो सेकेंड अर्थ, देयर इज ओनली दिस वन अर्थ। या तो अभी हमको हमारे एक्शन, आप सोच रहे होंगे मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, एवरी एक्शन, एक एक हाथ इम्पॉर्टेंट है, एक एक आपका काम इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप ज़रूर कोशिश करिए कि आपकी जो हैबिट्स हैं उनमें आप थोड़ा नोटिस करें। जो भी प्रोडक्ट्स आप लेकर आ रहे हैं अपने घर पे, थोड़ा आप देखिए कि क्या आप ला रहे हैं, क्या उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उनसे होगा। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो पता ही नहीं होंगी उन प्रोडक्ट्स की, और ये सारी चीज़ें हम क्या पहले नहीं कर रहे थे जब ये प्रोडक्ट्स नहीं थे? क्या तब हमारी क्लीनिंग नहीं हो रही थी? तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। और हम वन वर्ल्ड योगा में मेरे सारे क्लाइंट्स जो हैं, जो लाइफस्टाइल प्लान ले रखे हैं, दे ऑल लर्न हाउ टू डू इट बाय योरसेल्फ एट होम, एंड व्हाट आर द बेस्ट थिंग इफ यू आर नॉट एबल टू डू एट होम, आप क्या लेके कर सकते हैं जो आपको कोई आपको नुकसान भी नहीं करेगा, साथ में आपका काम होगा, साथ में आपके एनवायरनमेंट को भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सो दिस वी हैव टू एक्सटेंड, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, हर चीज, चाहे शैम्पू हो, कंडीशनर हो, कुछ भी हो, हमें जरूरत नहीं है केमिकल्स की। तो ये केमिकल जाकर अंदर हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को पल्यूट ही कर रहे होते हैं। तो हर एक एक्शन इंपॉर्टेंट है। पाउडर लगा रहे हैं आप, डिओड्रेंट लगा रहे हैं आप, तैयार हो रहे हैं, खुशबू सूंघ रहे हैं, बट ऑल दैट आर एक्चुअली लीडिंग टू योर इल हेल्थ। अभी वही हो जाता है कि हाँ, इंस्टेंटली पता नहीं चल रहा है ना, अमाउंट कम कम होता है, बट आगे जाके जो नुकसान होता है दैट इज रियली नॉट दैट। अभी आप कंपेयर करेंगे, अरे मेरे दादाजी भी ऐसे करते थे, मेरी मम्मी भी ऐसे करती थी, अभी तो उनकी इतनी एज हो गई, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ है। यू कांट कंपेयर दिस लाइक दिस। तो ये आप कंपेयर अगर करें, दैट इज नॉट द राइट वे। आप वो कंपेयर करिए कि हाँ, पहले के जमाने में कितने साल तक लोग जिया करते थे, या 98, 99, 100 क्रॉस कर लेते थे। That was the health they used to have because they were not using all these chemical, these dangerous things which we are actually using. So that is actually reducing our lifespan. तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि भाई मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, मगर मैं कैसे करूँगा? अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ ही इतनी लंबी नहीं रहेगी। This is very important to think upon. If you want to do something bigger, you should include everybody including the nature, the planet which we are living on. Yeah. तो ये सारी चीजें जो हम सुनते रहते हैं, भाई प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना, प्लास्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, हमारे इलेक्ट्रिसिटी हर चीज में प्लास्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट एटलीस्ट डू लिटिल लिटिल चेंजेस भाई, कि भाई मैं घर से जो बाहर जाऊं तो अपना थैला लेकर चला जाऊं, या तो अब मैं अपनी सब्जी खरीदने जा रहा हूँ, अपनी चीजें जा रहा हूँ, तो अपना पैकेट लेकर जाऊँ, अपना जो बैग है वो लेकर जाऊँ। सो ट्राई टू डू योर बिट, आप अपना बिट करिए। पंखे चल ही रहे हैं घर में, लाइटें चल ही रही हैं, सो बी बिट कॉन्शियस अबाउट व्हाट एक्शंस यू आर टेकिंग एवरी डे। हर चीज इम्पॉर्टेंट है। योगा इज नॉट जस्ट asanas and meditation, but all these things, how your actions are affecting others, how your actions are affecting the nature, it's very important. That will lead to be stress free, disease free, and violence free. Yeah, so this violence which is happening by our actions is very important.
तो ये वायलेंस अननोइंगली जो हम कर रहे हैं उसको हमें रोकना है, या जितना हो सके अपना उतना बिट करना बहुत जरूरी है. So the 5 R's, okay, is refuse, reuse, yeah, recycle, rot, reduce. तो ये 5 R's जो है इतना कोशिश कर सकते हैं ना, थोड़ा तो हमको जो जरूरत है वो ही लें. शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रहे हैं, कपड़ों पे कपड़े खरीदते जा रहे हैं, पर देखा है कपड़े किस मटेरियल से बन रहे होते हैं जो हमारी पूरी टाइम स्किन से टच हो रहे होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या एक्शंस ले रहे हैं. ईच एंड एवरी एक्शन मैटर्स. स्टार्ट विद बिट बाय बिट. एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा, पर अगर एक चीज भी एक दिन में हो रही है दैट इज नॉट बैड. तो शुरुआत करना चाहिए. तो जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड. ये रीयूज करें चीजों को, रिड्यूस करें, रिसाइकल करें. अगर आपका काम उस चीज का खत्म हो गया है, आप अपने फ्रेंड को दे दीजिए ना वो चीज, उसको फेंकने की जगह. वो आपको कुछ फ्रेंड का अच्छा लगता है, उसका खत्म हो गया उसका काम, तो आप उससे ले लीजिए. तो ट्राई टू रीयूज थिंग्स, रिसाइकल थिंग्स. अपना खुद जो वेस्ट है हम उसको घर का जो निकलता है ऑर्गेनिक वेस्ट बना सकते हैं. अपनी थोड़ा किचन गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं. तो दीज ऑल द एक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच गो अलॉन्ग विथ योर एवरीडे टास्क. तो हर टास्क आपका बहुत इम्पोर्टेंट है. So actually I was there was another slide also which I edited in another laptop. Again coming back to the final food कि हम ये सब तो हमने लाइफस्टाइल के बारे में सुन लिया, पर हाँ फूड के बारे में जानने आए थे ना, थोड़ा ज़्यादा यहाँ वहाँ मैं चली गई. बट आई होप दिस मेड इट यूजफुल टू यू. थोड़ा इंसाइट मिला होगा आपको फूड के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर. तो दिस WPLS, व्हाट इज दिस? W मीन्स हमारा जो भी खाना हो वो होलसम हो, होल हो. आधा अधूरा खाना नहीं है हमें. इट कैन बी होल ग्रेन. कोई भी ग्रेन है होल हो. सब्जी का छिलका नहीं निकालिए. क्या होगा अगर आपको बहुत लग रहा है कि सब्जी एकदम खराब है, ओके उसका छिलका निकाल दीजिए. अदरवाइज इतना बढ़िया होता है छिलका, उसके साथ में ही आप काटिए सब्जी. या तो होल होना चाहिए. ग्रेन है तो मैदा नहीं, आप होल ग्रेन यूज करिए. या उसके साथ में पिसवाइए चोकर के साथ में आटा. राइस है तो वाइट राइस ना हो, ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस, इतनी वैरायटी है राइस की, उसको यूज करना चाहिए. तो होलसम फूड हो, प्लांट बेस्ड होना चाहिए. प्लांट से जो हमें आया है, जो हमारे को नेचर से मिला, नॉट फ्रॉम द फैक्ट्री कि हम पैकेट से खरीद कर लेकर आए. पैकेट मीन्स जो भी फैक्ट्री से हमारे सामान आ रहा है, तो वो फैक्ट्री वाला प्रोडक्ट दैट इज नॉट फूड. इट शुड बी प्लांट बेस्ड, नॉट प्रोसेस्ड. या तो P इज फॉर प्लांट बेस्ड एंड नॉट प्रोसेस्ड. प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए. और L इज फॉर लोकल हो भाई. हमें विदेशी चीजें नहीं लेनी है कि भाई हम विदेशों का में ये जो है कीवी बाहर के आए हैं, या फिर कोई भी एनी ऑफ द सेलरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स विच आर एक्चुअली ट्रैवलिंग एंड कमिंग हियर. तो वही चीजें अगर इंडिया में ग्रोन है, आपकी कीवी इंडिया में उगी हुई है, आपके पास उगी हुई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जगह शुरू हो गई है. तो इफ यू गेट ऑल दोज वेजिटेबल्स ग्रोन इन इंडिया ऑर्गेनिकली, देन यू कैन हैव दैम. Why to get it from so far away? उसमें इतना तो उसमें केमिकल यूज किया जाता है ताकि उसको मेंटेन किया जाए. कलरिंग, पॉलिशिंग, बहुत चीजें की जाती है. तो मेक श्योर टू हैव लोकल. लोकली होना चाहिए. और प्लस सीजन का होना चाहिए. अगर उसी सीजन की चीज आप खाएंगे तो वो आपको उस सीजन में पूरा गो थ्रू करने में आपको इम्यून रखेगी. या सो विद दीज 4 थिंग्स, होलसम हो फूड हमारा प्लांट बेस्ड हो, लोकल हो, सीजनल हो. सो दीज आर द 4 की पॉइंट्स. सो बाय दिस आई विल ओपन दिस फॉर एनी क्वेश्चंस. तो कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं, कैसा लगा आप लोगों को, जो भी चीजें पूछना चाहते हैं तो जरूर बताएं. अनम्यूट करके शेयर करें हाउ यू फेल्ट अबाउट द सेशन. प्रिया, डू यू वांट टू स्पीक? डू शेयर कुछ शब्दों में कि व्हाट इज योर टेक फ्रॉम दिस क्लास. क्या आपको लगा, व्हाट यू वर ऑलरेडी डूइंग एंड व्हाट यू वांट टू गो बैक एंड डू. Can anybody can unmute and share? Abhishek, Pranati, Yukti, Saloni.
सलोनी बोलो ना, एनी एटलीस्ट कुछ तो बोलो, शेयर समथिंग। अभी मैंने इतना बोला है तो आप लोग भी थोड़ा बहुत तो बोलिए। Yes, ma'am. First of all, thank you very much for taking this session. It's a very informative session for us. And I think मैंने इस सेशन से सीखा है कि जंक फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नेचुरल फूड खाना चाहिए ज्यादा. So I think I'll be starting to avoid the junk food. मुझसे जितना होगा उतना मैं I'll try my level best for avoiding junk food because I know I'm addicted to it, but I'll be trying हाँ, for मुझे that. जाने वाला है, so I would just share another, this. Can you see my screen now? प्रणति देख पा रहे हो? Yes, ma'am, we can see. जो भी चीजें हमारे को मिलती है मार्केट में, वो सब आप घर पे भी कर सकते हैं. यू कैन प्रिपेयर योर बाउल, यू कैन प्रिपेयर योर मील एट होम. जो भी आप खाना पसंद करते, चाहे केक है, चाहे चॉकलेट है, चाहे नमकीन है, चाहे स्वीट्स हैं, everything you can have. Noodles, you can have everything. Only thing is you need to learn it, कैसे बनाना है. सब कुछ आप बना सकते हैं, चाहे ब्रेड है, चाहे पिज्ज़ा है, चाहे डोसा है, चाहे उपमा है, चाहे जूसेस हैं, शेक्स हैं, केक है. Everything you can prepare. Ice creams, lollies, everything you can make. ना सब कुछ आप घर पे, चॉकलेट केक, सब कुछ बना सकते हैं. Yeah. So it is not like you are going to miss on anything. हर चीज के लिए we have the right way to do it. Right quality of ingredients that are not going to harm us in any way. Whether it is baking or any kind of cooking, whether it is Chinese और जो भी आपको बनाना है आप खुद बना सकते हैं. You just have to learn it. Yeah? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, you just लेट मी नो. मुझे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है. कोई भी फ्यूचर में क्वेश्चंस होते हैं, एनीथिंग यू हैव, यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट विद द हेल्थ, विद द डाइट, विद द लाइफस्टाइल, कि या मुझे ये कुछ इसमें दिक्कत आ रही है या मैं खुद से ये कर रही हूँ. आई नीड योर गाइडेंस, सो आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू ऑल. और साथ ही साथ आप लोगों को मैं 2 डॉक्यूमेंट्रीज शेयर करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे ही. तो वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए. दैट विल ऑल्सो गिव यू मोर इंसाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली योर हैबिट्स आर लीडिंग टू एंड हाउ कैन यू टेक केयर. उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, विच आर एक्चुअली गिविंग यू फ्रॉम द रियलिटी, फ्रॉम द रिसर्चेस व्हाट दे हैव डन. तो गो थ्रू दोज ऑल्सो. एंड इसके अलावा इन योगा क्लासेस, इफ यू वांट टू ज्वाइन इन, फील फ्री, वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन द क्लासेस. मॉर्निंग टाइम रहता है हमारा, एक 5:30 क्लास होता है, एक 7 AM क्लास होता है, एंड इवनिंग में जो क्लास होता है दैट टाइमिंग इज 6 to 7. So you will be learning yoga that will be more specific to asanas. आसनास जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो हेल्थ इश्यूज हैं उसको तो टेक केयर करते ही हैं. तो स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो आसनास क्लास ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं एंड डिटॉक्स कर सकते हैं साथ में. यू कैन लर्न दैम. दे आर लाइक स्विमिंग. एज यू लर्न स्विमिंग, वो हमेशा आपको याद रहता है. एक बार डिटॉक्स सीखेंगे फिर कभी दवाइयाँ खाकर आपको चीज़ें नहीं करनी होगी. यू कैन लाइफ लॉन्ग इट विल बी विथ यू. यू कैन ऑलवेज यूज दैम फॉर द इश्यूज. चाहे सर्दी हो, चाहे बुखार हो, चाहे पिंपल्स हो, कोई भी ये सारी समस्या है, दवाइयाँ नहीं लगेंगी.